گلیات قدرت کا وہ حسین خطہ جہاں ہر درخت، ہر پتا اور ہر بادل میں ایک الگ کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کے جنگلات، چشمے اور پہاڑی رستے قدرت کی صناعی کے ایسے نمونے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور انہی حسین راستوں میں سے ایک ایسا ٹریک ہے جو برسوں تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا، مگر آج یہ ایک بار پھر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں باڑے گلی فارسٹ ٹریک کی۔ گلیات کے دامن میں چھپا وہ قدرتی خزانہ جو تاریخ، حسن اور سکون تینوں کو یکجا کیے ہوئے ہے۔ یہ ٹریک باڑے گلی بازار کے قریب سے شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہی ایک خوبصورت سائن بورڈ لگا ہے جو اس کی تاریخ اور ماحولیات سے متعلق ہدایات بیان کرتا ہے۔ وہاں لکھی چند سطور صاف کہتی ہیں، یہ جنگل ہمارا سرمایہ ہے، اسے جلنے نہ دیں، اسے برباد نہ ہونے دیں۔ اسی سائن بورڈ کے نیچے کھڑے ہو کر جب ہم نے اپنا سفر شروع کیا تو احساس ہوا جیسے کسی افسانوی دنیا کے دروازے سے گزر رہے ہوں۔ لمبے لمبے دیودار کے درخت جن کی خوشبو فضا میں گھل رہی تھی، اور دور کہیں بلبل کی آواز اس سناٹے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے ہم کسی اور صدی میں داخل ہو چکے ہوں۔ یہ ٹریک انگریز دور حکومت میں بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس راستے پر ایک رسی نما لفٹ لگی ہوئی تھی جس کے ذریعے باڑے گلی سے تھائی تک لکڑی اور سامان لایا جاتا تھا، اور تعمیراتی سامان تھائی سے باڑے گلی تک پہنچایا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد وہ لفٹ تو بند ہو گئی، مگر اس کے آثار آج بھی اس ٹریک پر موجود ہیں۔ مقامی لوگ اس لفٹ کو گراری کہتے ہیں، اور آج بھی گلیات کے بزرگ اس گراری کے قصے اکثر سناتے دکھائی دیتے ہیں۔ تقریباً 800 میٹر آگے بڑھنے پر ایک چشمہ دکھائی دیا، صاف شفاف ٹھنڈے پانی کا چشمہ جیسے پہاڑوں کی گہرائیوں سے خالصتاً بہہ کر نکلا ہو۔ یہاں ہمیں لاہور سے آئے ایک سیاح ملے، ان سے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ آپ خود دیکھ لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں لاہور سے آیا جناب۔ اچھا، کیسا لگ رہا ہے یہ ٹریک؟ ہم جناب ٹریک یہ بہت خوبصورت ہے، اور میں آپ کو بائی غور بتاؤں تو میں نے اپنی لائف میں 40 سال میں ایسا ٹریک نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بلڈنگوں سے، گاڑیوں سے باغی ہیں، اور زندگی میں نے ایسا ٹریک نہیں دیکھا۔ اتنی خوبصورت جگہ، پن ڈراپ سائلنس جو ہم ساری عمر سنتے آئے ہیں، لکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، وہ میں نے آج یہاں پہ آ کے دیکھا کہ پین ڈراپ سائلنس کا مطلب کیا ہے۔ یہ خوبصورتی، قدرتی، نیچرل بیوٹی بائی گاڈ امان میرے اللہ کہیں نہیں ملنے والی جگہ کے علاوہ۔ ٹورسٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ ٹورسٹ بھائی جو یہاں پہ نہیں آیا اس نے میرے خیال میں مری میں کچھ نہیں دیکھا۔ وہاں تو سب جگہ پہ ہر جگہ گھوڑے گھس گئے ہیں، فوڈ پوائنٹ بن گئے ہیں، ہٹس بن گئی ہیں، کاروبار بن گیا ہے، لیکن جو نیچر ہے وہ یہیں پہ ہے، کہیں پہ نہیں ہے۔ یعنی قدرت کو دیکھنا ہے تو باڑے گلی آؤ۔ اللہ سے ملنا تو یہاں پہ آتے۔ زبردستی یا ناظرین یہ کہتے ہیں کہ اگر قدرت کو دیکھنا ہے تو آپ باڑے گلی فارسٹ ٹریک آئیں۔ لاہور سے آئی اس شیری کے ساتھ گپ شپ کے بعد ہم آگے بڑھتے گئے۔ راستہ مزید گھنا ہوتا چلا گیا، دیودار اور بیار کے درخت آسمان کو چھونے لگے۔ ہوا میں درختوں کی خوشبو، مٹی کی نمی اور ٹھنڈک کی خاص مہک تھی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سوویت افغان جنگ کے دوران کچھ افغان مہاجرین نے یہاں عارضی پناہ لی تھی۔
शायद इस खामोशी में उन दिनों की बाज़गश्त अब भी मौजूद है। रास्ते में अचानक हमारी मुलाकात दो स्याहों से हो गई। बाद में पता चला कि वो एबटाबाद से आए हैं। उनसे जो गुफ्तगू हुई वो भी आप मुलाजा कर लें। कैसा लगा आपको ये ट्रैक? ये जी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है, ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। ये तो ट्रैक जो है हमारा मीरा जानी से जो गली बंगला उससे भी, वो तो खैर बहुत दूर है, लेकिन ये बहुत नज़दीक, बहुत जल्दी आधे घंटे के। कहाँ से आए हैं आप जी? मैं एबटाबाद से हूँ। अच्छा, एबटाबाद से। इस ट्रैक की कोई खास बात जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो? इसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है जी। इसमें जो जो दरख्त लगे हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं वो बहुत मज़े की और बड़ी इंसान को बहुत फ्रेश कर देती हैं। बहुत चूँकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ, यानी हर जगह आपको यहाँ नेचर पे- मिलती है। जी बिल्कुल, नेचर इसमें, और बहुत नज़दीक और बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर आप आ जाएं और यहाँ पे एबटाबाद से। एबटाबाद से तो ये ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है। ये तो मैं कहता हूँ जो उसका अयूबिया पार्क का जो है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो खैर उसको तो उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है, यहाँ पे कोई इतनी ख़ास डेवलपमेंट मुझे नहीं नज़र आई, लेकिन मैं मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा थोड़ी सी कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि टूरिस्ट आएँ और यहाँ पे आके बहुत प्यारी जगह है। वो जो कौन सा इधर आपको पता है, गै वाला, तो ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही। चलें जी, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक और ज़िम्मेदारान तक पहुँचाएँगे कि इस ट्रैक को डेवलप किया जाए, यहाँ पर सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ सके। ये बहुत ज़रूरी है जी। खुश रहें, आबाद रहें जी, बड़ी नवाज़। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उनसे गुफ्तगू से हमें तो यही अंदाज़ा हुआ कि वो भी इस ट्रैक के आशिक हैं। उनकी बातें सुनकर हमें एहसास हुआ कि ये ट्रैक सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक तजर्बा है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद एक पुराना वाबडा का टावर नजर आया। ये वही मुकाम है जहां अंग्रेज दौर में बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन गुजरती थी। आज अगरचे निज़ाम नया है मगर मकाम वही पुराना है, जैसे वक्त रुक गया हो और तारीख खुद अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। पसीने में नाज़रीन हम शरबूर हो चुके हैं और घने जंगल में पसीना भी ज़्यादा आता है, सांस भी फूल जाता है, लेकिन जो एडवेंचर और जो मज़ा है उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। टावर के बाद रास्ता कुछ खुलने लगा मगर झाड़ियां बढ़ती गईं। दरख्तों की घनी छांव में चलना किसी एडवेंचर से कम न था। एक लम्हे को लगा जैसे हम गलियात में नहीं बल्कि अमेज़न के जंगलात में हैं। हर मोड़ पर हैरत, हर कदम पर नया मंजर। ये वो लम्हे थे जहां इंसान खुद को कुदरत के करीब तरीन महसूस करता है। रास्ते में एक और हमसफर मिल गए, मौलाना फजलुर रहमान। उनसे जो बात हुई वो भी आप देख लें। बहुत ही प्यारी निकासी है, जगह जगह रास्ते में पानी है, आबशारें भी वो ऐसा जो है ना माहौल पैदा करती हैं। और ये जो आगे आकर बिजली का खंबा है, तो इससे आगे तो ये अंग्रेज दौर का एक बहुत ही प्यारी जो है ना सड़क नुमा जो है ट्रैक है, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा अंदाज मंजर पेश करती है। तो ये हम देख कर आए हैं माशाल्लाह, घने जंगल में बेहतरीन ट्रैक जो है ना, ये ज़बरदस्त इसका नज़ारा है, तो टूरिस्ट के लिए बहुत ही प्यारा है। हम मजीद आगे बढ़े तो रिजर्व फॉरेस्ट की आखिरी बाउंड्री आ गई। बहुत मुश्किल और कठिन रास्तों से हम यहाँ तक पहुंचे थे।
अगर रास्ते की सफाई प्रॉपर तरीके से हुई होती तो ट्रैक बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। और इतना कुशादा और शानदार ट्रैक शायद गलियात में और किसी जगह नहीं। यहाँ से एक दुश्वार रास्ता था, हमने एक शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट के बाद जो हमारी हालत हुई वो आप खुद देख लें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं बारिश से जैसे ही हम निकले मुश्किल जगह पे फंस गए। रास्ता ऊपर से जा रहा था, हमने कहा कि थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, और शॉर्टकट का नतीजा हमेशा मुश्किल होता है। कहते हैं नेवर ट्राई टू यूज शॉर्टकट। सो अचानक सामने मरी रोड का मंजर उभरा। नीचे एक नदी बहती थी। इस नदी की ठंडी हवा ने हमारे चेहरों पर ताजगी बखेर दी। यहाँ से होते होते हम नदी के करीब पहुंच रहे थे और जंगल हमसे दूर होता जा रहा था। अचानक हमने पलटकर जंगल की तरफ देखा। सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों से छिन रही थीं। पत्ते हिल रहे थे जैसे जंगल हमें खुद अलविदा कह रहा हो। बाड़ेगली फॉरेस्ट ट्रैक ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ आने वाला हर शख्स खुद को बदलता हुआ महसूस करता है। शोर से निकलकर सुकून की तरफ, बेकरारी से निकलकर खामोशी की गोद में। अगर आप कभी गलियात आएं तो इस ट्रैक को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ हर पत्ता, हर दरख्त और हर खुशबू आपसे कहेगी ये है फितरत की असल सूरत, खामोश मगर ज़बरदस्त। नाज़रीन, इस ट्रैक के आखिरी हिस्से पर, आखिरी कोने पर हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ज़रा नज़दीक आकर दिखाएं। पानी की एक खूबसूरत नदी, और ये पानी बाड़ेगली के करीब से आता है सीधा अरनो और तरबेला डैम, खानपुर डैम तक, या तरबेला डैम तक जाता है। और इसी तरह हमारे अकब में ये सड़क है। ये सड़क गैस से नीचे आती है, तकरीबन कोई 500 मीटर से भी कम ये सड़क होगी। एबटाबाद मरी रोड, ये हमारे ऊपर बिल्कुल एबटाबाद मरी रोड है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस ट्रैक का। ये कच्चा रास्ता, ये कच्चा ट्रैक, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और बाड़ेगली तक जाता है। 5 किलोमीटर का ये रास्ता है नाजरीन, और ये 5 किलोमीटर आपके कमोबेश 90 मिनट लेते हैं। और उन नौजवानों के लिए जिनको एडवेंचर पसंद है, वो अगर यहाँ से बाड़ेगली तक जाएँ तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इतना खूबसूरत ट्रैक ना मीरा जानी है, ना डगरी बंगला है, ना यूबिया पाइपलाइन ट्रैक है। इतना एडवेंचर, इतना घना जंगल शायद पाकिस्तान में किसी और जगह ना हो। अमेज़न के जंगल जो हैं उनकी तरह आप जब ट्रैवल यहाँ पे जाते हैं तो आपको लगता है कि आप अमेज़न में हैं। ज़रूर आएँ एक बार इस ट्रैक को देखने के लिए।